You start when we're ready, Dr. Kapoor. Thank you. Namaskar, everybody. Good morning. Morning. Good morning. Not very bad morning in London. Getting a little bit chilly. Yes. Yes. Getting prepared again for winter. That means we have to do yoga practice for a long time. Summer we do less time. Winter we have to do long time. And change our clothes also. That is what Ritu Charya. Everything is going with the weather and with our physical, mental, spiritual, and social problems. Okay, namaskar, everyone. Jai Mata Di, Jai Sri Krishna, Jai Santoshi Mata. The next programs are coming soon. Navratras. Jai Mata Di, Jai Mata Di, Jai Mata Di. चलिए सीधा बैठिए. Next step, spine straight, shoulder behind. मन सहज, आंखें बंद. ध्यान मुद्रा में बैठ कर लंबा गहरा सांस लेंगे. नाक से और मुंह से 3 बार पवित्र नाम ओम का उच्चारण करेंगे. ओम 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. Everybody is welcome here in this session. Keep in mind all the precautions, whatever you are doing, whether you have physical exercises, the poses, the asana, and the pranayama. Do as much your body allows you. Don't overdo it. We know it is quite harmless procedure what we are doing. Anybody can do it, any condition. Whether you're perfectly healthy or you're suffering from various ailments. But again, we have to keep in mind certain precautions. Hypertensive, heart problem, severe acidity, severe asthma, severe backache, or you're recovering from any ailment. So you have to watch yourself and do accordingly. Don't overstress yourself. Every step we have to enjoy and with a smile on our face to get the full benefit. With full surrender, पूर्ण शरणागति और पूर्ण विश्वास के साथ तभी योग प्रैक्टिस काम करती है. पूर्ण पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. सारा काम पूर्ण, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, because this time is very important. सबसे पहले चेक करेंगे how our nostrils are working, whether both the nostrils are working properly or not. Usually one is blocked
that goes on the whole day, you know. So let's check ourselves ताकि पूरा benefit मिले हमें breathing exercises का. Sit straight. Keep your hand in Dhyan Mudra and try to breathe through your nostril and watch if one of the nostril is blocked or not. You can put your hand in front of your nose and you can see which side the air is coming and going less. Usually by this time, 9 o'clock, most of us might have done some of yoga steps already, because some people get up 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, and they have done some of the breathing exercises already. But if you haven't done it, then please check yourself. Which nostril is blocked? Go on breathing. Deep breathe in and out. This is your Bhadraka Pranayama. Of course, my both the nostrils are open because I do in the beginning, also in the morning, little bit pranayama. Let's see, for example, my left nostril is blocked. So I'm going to close my right nostril, breathe in and out through the left nostril. Carry on yourself. The one which is your blocked, try to breathe through that. लंबा गहरा सांस करिए, धीरे धीरे, डीप डीप, जितना टाइम लेने में उतना टाइम छोड़ने में. थोड़ा टाइम करने के बाद एकदम आपकी नॉस्ट्रल खुल जाती है. अब लेट्स सी, माय राइट नॉस्ट्रल व्हिच इज आवर सूर्य नाड़ी, ये है चंद्र नाड़ी, लेफ्ट वन, and their connection is to the opposite side of the brain. The right is connected to the left side of the brain and the left is connected to the right. ये बैलेंस करता है हमारे दिमाग को. तो चलिए, हमारी right nostril is blocked. Let's say, close the left nostril, breathe in and out throughout your right nostril. लंबा गहरा सांस भरिए. चलिए, अब सबके दोनों नॉस्ट्रल इक्वल काम कर रहे हैं. जब वो दोनों इक्वल काम करेंगे तो फायदा होगा आपको. नहीं कर रहा, आपका नहीं कर रहा. कौन सा नहीं कर रहा? ये है मिसेस रोहन. यू कैन ओपन अप एंड टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम डियर. क्या प्रॉब्लम है आपको? The left one. The left one is blocked. Yeah. तो फिर क्या करना है? राइट को ब्लॉक करिए, बंद करिए, राइट को लेफ्ट लीजिए. लंबा गहरा सांस धीरे धीरे भरिए, जोश के साथ नहीं, स्लोली एंड स्लोली, और धीरे भरिए. इसको काफी टाइम करना पड़ेगा, 5 बार, 10 बार, 12 बार, 20 बार, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच ब्लॉकेज इज देयर. बाकी सबके खुल गए दोनों नॉस्ट्रल. हाथ खड़ा कर दीजिए, खुल गए हैं. तो नहीं खुले तो फिर लगे रहिए जब तक मिसेस रोहन लगी हुई है. तो कैरी ऑन. अंदर ही अंदर जाप करिए, ओम का सिमरन. अंदर ही अंदर जाप करिए विद एवरी ब्रेथ. धीरे धीरे सांस अंदर भरिए. मोस्ट प्रॉब्ली देयर इज अ ब्लॉकेज इन योर नॉस्ट्रल. अपने नाक को क्लीन कीजिए पहले, ब्लो आउट. कई दफा म्यूकस रास्ते में होता है जो आवाज प्रोड्यूस करते हैं. जब सांस लेते हैं तो वो की म्यूकस हिलता है अंदर. तो आप नाक का अपना ब्लो कीजिए अच्छी तरह, फिर कीजिए सांस लीजिए.
क्योंकि आजकल इतना कफ कोल्ड हो रहा है हम सबको, विद द चेंज ऑफ द वेदर, ऋतु चेंज की वजह से सबको हो रहा है, पर सब पैनिक हो रहे हैं कि कोविड तो नहीं हो गया, कोविड तो नहीं हो गया। हर समय कोविड नहीं होता, पर फिर भी अपना अगर आपको डाउट हो, ऐसे सिम्टम्स हो, तो प्लीज टेस्ट फॉर द कोविड टेस्ट जरूर करो अपना। कैरी ऑन एवरीबॉडी, सबके नॉस्ट्रल खुल गए। अगर रास्ता साफ होगा तो तभी हमें मंजिल मिलेगी, तभी हम ब्रीथ कर सकेंगे प्रॉपर, डूइंग ऑल द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम स्टार्टिंग फ्रॉम द भद्रिका। फिर आएगा आपका कपाल भारती, फिर आएगा आगे कौन सा, बाहरी प्राणायाम, अग्नि क्रिया, उजाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भामरी प्राणायाम, उद्गीत pranayam. All the pranayam will come only if the nostrils are open. There is enough डॉक्टर airway कपूर जी, going on. डॉक्टर कपूर जी कुछ ऐड कर सकते हैं आप पे? जो हाँ जी, हम कुछ ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, जिनका जरूर करिए। जिनका राइट नॉस्ट्रल ब्लॉक है, लेफ्ट फिंगर के ये फिंगर है, इसको कोई कार्पेट पे कोई रफ चीज में रगड़िए, नाक साफ हो जाएगा। अच्छा, 3 या 10 acupressure point फॉर ऑपोजिट नोज। आपका राइट नॉस्ट्रल ब्लॉक है, लेफ्ट ब्लॉक है राइट हैंड, तो इसको रगड़ने सारी पे कहीं उंगलियों को जोड़कर, ऐसे रगड़िए कहीं पे, रफ सरफेस पे। सारी जैसे हम करते हाँ हैं ना वो हाँ समान मुद्रा, हाँ, वो सारी वो उंगलियां कीजिए, जोड़कर या इससे हाथ से दबा दें, दबाने से नाक साफ हो जाएगा। टिप ऑफ द फिंगर, ये साइनस पॉइंट है। या इंक्लूडिंग द थंब आल्सो। हाँ, सब मेरे सब साइनस पॉइंट है पूरे फिंगर के। थैंक यू, वेलकम, थैंक यू वेरी मच। ऐड करिए टीचर जी, ऐड करते जाइए। दैट्स व्हाई आई एम हियर टू लर्न। honey, what happened to Mrs. Rohan now? Has she opened up? Yeah, तो फायदा हुआ आपको? yeah. yeah, good, excellent, well done. फायदा हुआ है आपको? Yes, it's open now. हाँ, देखिए जोर से कहिए ना, हो गया फायदा? हाँ, हो गया मेरा। हो गया, हो गया। जय हो, तालियां बजाओ। Thank you. हो गया फायदा। रोज इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब भी आप शुरू करो अपना योग प्रैक्टिस, पहले नाक खुलेंगे तो बात बनेगी ना, अगर नाक ही बंद है तो बेचारे क्या करेंगे बाकी प्राणायाम के स्टेप्स। चलिए आप कुछ एक्सरसाइज करते हैं, इससे भी खुलेगी। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, गेट रिड ऑफ एनी आर्थराइटिस, एनी पेन। और ये सारा कवर करता है पूरा अपर आर्म, फ्रॉम योर फिंगर्स, फ्रॉम योर रिस्ट, फ्रॉम योर एल्बो एंड योर शोल्डर। सीधा बैठिए एकदम, लिफ्ट अप योर स्पाइन। जिन लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, स्वेलिंग है उनकी फिंगर्स पे बहुत ज्यादा, जिसको रोज करना है, रोज करना है। अंगूठे को भी हिलाओ अच्छी तरह। पिन से नीडल्स पेन नहीं होंगी, पेन नहीं होगी। और ऐसे करो फिर। ये है मुद्रा हमारी समान मुद्रा, ये बैलेंस करती है ऑल थ्री दोषा। जब ऐसे करते हैं तो कोई बीमारी नहीं होती, सब भाग जाती हैं। पित्त, कफ एंड वाटर बैलेंस कर रहे हैं, और इससे हमारी ग्रिप बढ़ेगी। नहीं तो हाथ में कोई चीज पकड़ते हैं गिर जाती है, जो भी पकड़ते हैं गिर जाती है। रोज इतने पेन भी नहीं पकड़ा जाता। ऐसे करिए रोज रोज, एवरी डे। देन करिए ऐसे स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मसल जॉइंट्स एंड द बोन मास। दूसरी तरफ एट द शोल्डर लेवल, अब नीचे करिए, इसको नीचे करिए। वेल डन। स्ट्रेच एकदम जैसे डांस कर रहे हैं। फिर जोर से करो, बंद, कस के पकड़ो अच्छी तरह। अगर एक अंगूठा ऊपर जाएगा तो दैट इज लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा बन गई।
any thumb you can raise up. To increase the heat in your body, good for your throat. जितनी भी बीमारियां इससे दूर होती हैं, ब्लड प्रेशर भी ऊपर जाएगा, इनका लो ब्लड प्रेशर। कस के पकड़ो अपने आप को, फिर घुमाओ इसको, लंबे गहरे सांस लेते हुए नाक से घुमाओ इसको। एट योर ओन पेस, अपने शरीर को आप देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अपर आर्म की, बी वेरी जेंटल टू योरसेल्फ, धीरे धीरे उसको इंक्रीज करना है, पहले धीरे करना है, फिर मीडियम करना है, फिर फास्ट करना है। और इसके इतने फायदे हैं, आपका वजन भी गिरेगा इसी से। डोंट वरी इफ यू आर अंडर वेट, you will put on some weight. That is the magic of the yoga practice. Balancing ourselves in every aspect of life. First time मुस्कुराते हुए, Carry on. Want to see you. कौन कौन हंस रहा है मेरे साथ? Very good. हंसता मुस्कुराता जा तू नाम ते अंधा जा। या अब आगे पंजाबी आगे आपकी। हंसते मुस्कुराते हुए प्रभु का नाम ध्याइए, और नाम ध्याने से आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी, जो भी है आपकी मंजिल। मंजिल इस समय क्या है? अपने शरीर को ठीक करना, इसीलिए हम योग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी गाइए मेरे साथ। हंसता मुस्कुराता जा तू नाम ते आंदा जा, मिल जाएगा डर तेनू, मिल जाएगा योग तुमको, तू नाम दे आता जा। हंसता मुस्कुराता जा तू नाम ते आंदा जा। वो नाम क्या है? ओम का सिमरन करिए अंदर ही अंदर। ओम ओम ओम, इतनी एनर्जी आएगी प्रभु के सिमरन से। सबसे बड़ी औषध, यही संत महात्मा हमें बताते हैं, सबसे बड़ी औषध है प्रभु का नाम। वेल डन। आर्म्स अप नाउ, डाउन, अप डाउन एट योर ओन पेस। ऊपर जाते हुए हाथ खुलते, नीचे आते हुए हम मुट्ठी बनाते हैं। इसमें भी हम 3 स्पीड यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन बॉडी। फर्स्ट वन इज वेरी जेंटल, 1 2 3 4 5। चलो मीडियम पे अब 1 2 3 4 5। अब फास्ट करेंगे, और कोशिश कीजिए जब आप नीचे आ रहे हो तो अपनी छाती को ऐसे करो जैसे कि आप एक्टिवेट कर रहे हो। जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है, पेन, इवन द थोरेसिक रीजन, अपर पार्ट, जो आपकी ये जो एरिया है यहाँ आपको दर्द हो रही है, और एक्टिवेट करना है, और अपना जो वजन है उसको गिराना है। तो देखिए ऊपर हाथ, सांस लेते और छोड़ते हुए करिए इसको। अपनी बॉडी को आप देखिएगा, ये करने से बहुत फायदा होता है, एकदम आप एक्टिवेट कर जाते हैं। थोड़े टाइम के अंदर यू आर इंक्रीजिंग सो मच एनर्जी इन योर बॉडी। वेल डन। कितने लोगों ने किया इसको? करिए इसको दोबारा। कितने लोग फास्ट कर रहे हैं? और इसको पुश करो ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितनी ताकत आ गई। Even my heart rate and my pulse and the respiration is gone up. इसे कहते हैं कार्डिक एक्सरसाइज, जो हम सबको चाहिए। थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं करनी हमने, थोड़ी बहुत हमें भी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा ब्लड फ्लो अच्छा होता है। सारा जो अच्छा ब्लड है वो ब्रेन को जा रहा है, सारे शरीर में जा रहा है। ये पंप जो है हार्ट पंप, दैट वर्क्स मच बेटर।
क्योंकि जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, सबसे यही प्रॉब्लम है कि उनका सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रहा सारी बॉडी में, इसलिए उनको बीमारियां हो रही हैं। तो ये फॉलो करना है अपनी बॉडी को। अगर आप ठीक नहीं है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट पहले करो और उससे पूछो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो, या योगा टीचर जिसको समझ हो इन चीजों की, वो आपको बता सकती है। सबके लिए नहीं होता ये, इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड द प्रिकॉशंस वेरी केयरफुल। मजा आ गया ना करने से? हाँ आ गया। थोड़े टाइम में इतने एक्टिव हो गए। अब हम लोग जॉगिंग तो कर नहीं सकते, हाँ हमें वॉक करना चाहिए एवरी डे। ये चीजें किस लिए एक्सरसाइज? व्हाई नॉट टू गेट द डिजीज। और इस उम्र में बड़ी बीमारियां लग रही हैं, उसका मेन काज दो है। एक तो हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, सारा दिन बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते। जो लोग बिल्कुल योगा प्रैक्टिस नहीं करते, क्या वो लोग कर रहे हैं? घर पर बैठे हुए हैं और घर का भी बहुत ज्यादा काम नहीं करते। अगर अकेले हैं तब भी बेचारे नहीं करते, अगर फैमिली के साथ है तब भी नहीं करते, क्योंकि फैमिली वाले करने नहीं देते। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिए घर पे, और कुछ नहीं। सब्जी काटिए, थोड़ी बहुत सफाई करिए, थोड़ी बहुत क्लीनिंग करिए, और करिए वॉक एवरी डे। ये किस लिए कह रही हूँ? लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज लीड्स टू मैनी डिजीजेस, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल। सोशल अगर बाहर जाते नहीं तो लोगों से कैसे मिलेंगे हम? तो ये सब चीजों से कितनी बीमारियां लगती हैं हमें। मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, फिजिकल में आज मैं पिकअप करने जा रही हूँ। किसी को याद है लास्ट सेशन में मैंने कहा था, जब इम्यूनिटी के ऊपर श्रवण जी कर रहे थे मुद्रा, तो मैंने कहा था नेक्स्ट वीक, एनीबॉडी रिमेम्बर्स, आई विल डू ऑन कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन सच कॉमन डिजीज, हम बोलते नहीं शर्म के मारे। कॉन्स्टिपेशन इज मदर ऑफ ऑल द डिजीजेस। मेंटली जिन लोगों को रोज या उनके रेगुलर बाउल ओपनिंग नहीं होती, दे आर वेरी डिप्रेस, उनकी शक्ल से पता लग जाता है। इसलिए कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में कॉन्स्टिपेटेड फेस, हम कहते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन, उनका चेहरा कॉन्स्टिपेटेड है। और जब हमारी बाल रोज काम करती है तो हम कितने खुश होते हैं, वी आर सो हैप्पी। अब ये हमारा मेंटल, इसके ऊपर बहुत इफेक्ट है। जब हम खुश होते हैं तो हम ज्यादा खाते हैं, है ना? और जब डिप्रेस होते हैं तो भूख मारी जाती है। कोई ऐसी शौक की खबर आ जाए, कोई यहाँ से हमारे से बिछड़ गया, उस समय आपको भूख लगती है? नहीं लगती भूख। तो जो लोग नहीं खाते खाना, उनको भी कॉन्स्टिपेशन होगी, और जो लोग प्रॉपर तरीके से नहीं खाते खाना, उनको भी होगी कॉन्स्टिपेशन ना। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओगे मेरे को कितने लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है? हाँ, नहीं रहती। ये वेरी लकी। कितने लोग हैं? खास लोग नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं आपको कॉन्स्टिपेशन? कई लोगों को है, उसके कई कारण हैं। योगा करते हैं ना। हाँ, यू आर योगी, आर यू योगीज, दैट्स व्हाई। एंड इतने दिनों से, इतने सालों से चल रहा है, श्रवण जी की अपार कृपा से आपका जूम, रोज आप लोग आ रहे हो। मैं तो कभी कभी आती हूँ, आप तो रोज आ रहे हो, रोज योग करते हो, और इतनी अच्छी बातें सुनते हो सब टीचर से। तो आप अपनी डाइट का ख्याल भी रख रहे हो, मेरा ख्याल। यस, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है, कैसे चबाना है, कितना पानी पीना है। तो आप लोग, यू आर वेल इन्फॉर्म्ड एंड यू आर फॉलोइंग अप दोज इंस्ट्रक्शन, दैट्स व्हाई यू हैवंट गॉट कॉन्स्टिपेशन। ये कारण है। आप इतनी एक्सरसाइज करते हो, कम से कम घंटा आपकी सॉलिड एक्सरसाइज होती है। आप आसन के साथ भी एक्सरसाइज कर रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज के साथ भी कर रहे हो, एक्सरसाइज आपकी चलती जा रही थ्रू आउट। तो इसलिए आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कॉन्स्टिपेशन की। सिर्फ 3-4 लोगों ने हाथ खड़े किए थे। एक बार फिर मैं देखूं किन किन को है कॉन्स्टिपेशन। 1 2 3। शर्म वाली बात थोड़ा है, कभी कभी सबको हो जाती है।
4-5 लोगों को है, अब देयर आर अबाउट 36 पीपल टुडे, 35। तो कहने का मतलब ये है, अब इसके ऊपर आज मेरा टॉक चलेगा कॉन्स्टिपेशन। देखिए कोई शर्म वाली बात नहीं है, कॉन्स्टिपेशन किसी भी उम्र में हो सकती है। छोटे बच्चों को होती है कि नहीं, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको खुल के उनके बॉल्स ओपन नहीं करती, छोटे बच्चे को हो सकती है, अडल्ट को हो सकती है, बुजुर्गों को हो सकती है, सीनियर्स को हो सकती है, पर सीनियर्स में थोड़ी ज्यादा है। जैसे बाकी हमारी चीजें इतना काम नहीं कर रही, कोई भी ऑर्गन ठीक तरह काम नहीं कर रहा है इस उम्र में आकर, अगर आप योगा प्रैक्टिस नहीं करते। उन लोगों से पूछिए जो योगा प्रैक्टिस नहीं करते, घर पे बैठे हैं अकेले, कोई उनको पूछता भी नहीं। जो योग प्रैक्टिस नहीं करते इस उम्र में, इट्स वेरी कॉमन। ये किसी को भी हो सकती है, किसी उम्र में भी हो सकती है, कोई ऐसी शर्म वाली बात नहीं। और इसके काजेस क्या है, मेन काजेस? सबसे पहले आपका स्ट्रेस। जैसे मैंने बोला, जो लोग खुश होते हैं वो खाना ठीक खाते हैं, जो लोग डिप्रेस होते हैं वो खाना नहीं खाते। नहीं खाओगे तो अगर खाए कुछ नहीं तो बाहर क्या निकलेगा। और उसके काजेस हैं, आप जो लोग को में ज्यादा रहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, फूड पहले डाइजेस्ट नहीं हुआ और आप खाते जा रहे हो सारा दिन। तो जैसे आपने वो आर्टिकल पढ़ा होगा, श्रवण जी से आया था, आपके सोल्जर्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे, जिन्होंने डाइजेस्ट करना है आपका फूड, आपका लीवर, आपकी स्प्लीन, आपकी किडनीज, दे आर नॉट वर्किंग। ऊपर से ऊपर हम खाते जा रहे हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं। अगर आप किचन में बैठे हो तो बी वेरी केयरफुल, देयर इज सो मच टेम्पटेशन, सामने इतना खाना पड़ा है, आते जाते मंचिंग एंड स्नैचिंग हो रही है, उससे आपका पहले जो फूड आपने खाया वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। और अगर आप लोग पानी इनफ नहीं पीते तो दिस इज द बिगेस्ट कॉज। अब इस उम्र में यही रीजन है, पानी हम ज्यादा नहीं पी रहे, उसके कई कारण हैं। एक तो यह कि आप इतने मोबाइल नहीं है, अपने आप उठ के पानी बार बार नहीं पी सकते, घर में आपको हेल्प नहीं है। और दूसरी बात है कि डरते हम बार बार पानी ज्यादा पिएंगे तो हमें यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए भी कई लोग पानी ज्यादा नहीं पीते। अगर आप ज्यादा पानी नहीं पिएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन होएगी, डेफिनेटली 100%। और उसके बाद कई ऐसी दवाइयां हम लोग खा रहे हैं जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो रही है। जैसे आप एंटासिड लेते हो इंडाइजेशन के लिए, या डायबिटिक्स ले रहे हो, आपको ब्लड प्रेशर है, किडनी की प्रॉब्लम है, उसमें भी आपको कॉन्स्टिपेशन होनी है। और जो लोग लेते हैं एंटी डिप्रेशन, डिप्रेशन की टैबलेट्स, उनको भी हो रही है। और उसके बाद होती है कि फूड हैबिट्स, हम क्या खाते हैं, समोसे, गुलाब जामुन, कचौरियां, तली हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, या लेते हैं फास्ट फूड, या पैक्ड प्री पैक्ड प्रिपेयर फूड खाते हैं। तो उसमें भी इतने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हमारी गट के लिए अच्छे नहीं है। तो इसलिए ये देखना है कि हम खा क्या रहे हैं, फ्रेश फ्रूट ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, पानी इनफ पीते हैं। और कई दफा हार्मोन्स की वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, याद है प्रेगनेंसी में क्या हुआ था? प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है बिकॉज ऑफ द ईस्ट्रो एंड द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, वो हमारी गट को स्लो करती हैं। और दूसरी है आपकी थायराइड प्रॉब्लम, ओल्ड एज में ज्यादा होती है, अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, जिसकी वजह से उन लोगों को होती है कॉन्स्टिपेशन, और उनका वजन भी बढ़ जाता है, उनको ठंड भी ज्यादा लगती है, उनका हेयर लॉस भी ज्यादा होता है, उनको डिमेंशिया भी ज्यादा होता है। ये सारे कारण हैं। और इसके पीछे यही है कि फिजिकल एक्टिविटी अगर आप नहीं कर रहे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए रोज जाइए वॉक करने के लिए, धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, पहले स्लो वॉक करिए, स्पेशली द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम ब्रेथलेसनेस, जिनको शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ है, उनको धीरे धीरे चलना चाहिए। पहले घर में घूमना शुरू करो। अगर आपकी बैलेंस ठीक नहीं, हाथ में स्टिक पकड़िए, लोगों को शर्म आती है स्टिक पकड़ने में। हम रोज देखते हैं कई हमारे फ्रेंड्स, उनके इतने फॉल्स हो रहे हैं पर वो लोग स्टिक नहीं होल्ड करते, पता नहीं क्या है। अरे भैया ऐनक भी तो लगाते हैं,
तो स्टिक पकड़े, स्टिक इज माय फ्रेंड, आई कॉल माय स्टिक। सिंस आई हैड माय नी प्रॉब्लम, आई टेक माय स्टिक एवरीवेयर, और उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। आप हंसना इसके लिए। आई कॉल माय स्टिक माय सहेली, मेरी सहेली मेरी स्टिक है। हर समय कोई आपके साथ बाहर नहीं जा सकता घर से, अपनी स्टिक को ले जाओ। और दूसरा, आजकल क्या हो रहा है, इतनी रॉबरीज हो रही हैं, हर कंट्री में हो रही हैं। अगर आपके पास स्टिक है तो यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आई कैन गिव यू वन एग्जांपल। आई वाज इन, आई थिंक इन इटली, and these two boys came to me and said, do you want this mobile phone, and they wanted to snatch my purse, shoulder bag. तो मैंने ऐसे घुमाई, तुमने यार, भाग गए दोनों बंदरों की तरह। कहने का मतलब ये है, स्टिक इज ए ग्रेट प्रोटेक्शन फॉर द वुमेन। हमेशा स्टिक अपने पास रखिएगा। शर्म आती है तो फोल्डिंग स्टिक्स मिल जाती हैं, और उसमें डाल लो, जहां जरूरत पड़े निकाल लो। आई हाईली रिकमेंड दिस। हमारी उम्र में हमें अपनी प्रोटेक्शन आप करनी है, आप करनी है। स्टिक का बहुत फायदा है। प्लीज प्लीज, मैंने एक दो लोगों से कहा, आप क्यों नहीं स्टिक लेती मिसेस सो एंड सो? भाई शर्म आती। मैंने कहा ऐनक क्यों लगाई है, उसका भी उतार दो, ऐनक भी उतार दो, वो तो साफ नजर आ रही है ऐनक। ऐसी ये है फजूल की बातें हैं। मेरे ख्याल में लोगों को थोड़ा अपने आप का ध्यान रखना है। और आजकल कहाँ प्रॉब्लम नहीं है, कौन सा एरिया इन एनी कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, हेयर देयर एवरीवेयर। इवन लंदन में, हमारे ईस्ट लंदन में इतनी रॉबरीज हो रही हैं। कभी किसी की चैन खींच रहे हैं, किसी की चूड़ियां उतार रहे हैं। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक होगी तो कम से कम उस तरह उसको मारो अच्छी तरह। दैट इज अ वुमेन एम्पावरमेंट। बी स्ट्रॉन्ग, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी। तो आपको बता दिया, अब फिजिकल एक्सरसाइज करनी है आपने, एंड वी आर वेरी लकी, वी आर डूइंग एवरी डे। करना क्या है इसमें, वही अपने आप को, शरीर को हिलाना है। बैठे बैठे हिलाते जाइए, इससे बहुत फायदा होगा। जब ऊपर नीचे हम कर रहे हो तो ये इसका इफेक्ट जा रहा है। एज द टॉपिक इज कॉन्स्टिपेशन ऑन योर गट, जो इंटेस्टाइन है वो काम करेंगी तो बाउल अपने आप ओपन अप हो जाएगी। नो कॉन्स्टिपेशन। तो हंसते मुस्कुराते हुए ऊपर नीचे टांगे भी हिला लीजिए, उसका भी फायदा होगा। टांगे भी हिलाइए हंसते हुए। सो इजी। मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं चाहिए, मुझे लोग कहेंगे कॉन्स्टिपेटेड फेस। नो, आई वांट स्माइलिंग फेस। जोर से वाह जवानों, कमाल, यू आर डूइंग वेरी वेल। कभी तो आपको कॉन्स्टिपेशन है नहीं, पता नहीं मैं किसको बोल रही हूँ। यू आर ऑल कन्वर्टेड। शाबाश। रहेगी कॉन्स्टिपेशन, इसी तरह वॉक करनी है धीरे धीरे। पहले घर में शुरू करनी है। अगर आपका बैलेंस नहीं ठीक, अपनी डाइनिंग टेबल उसके अराउंड घूमते जाओ। उसके बाद बाहर जाना है। अगर दिन अच्छा है, अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो ठंड में कभी मत बाहर जाइएगा। बाहर जाना है, धीरे धीरे बढ़ाने अपने स्टेप। 5 मिनट किया, 10 मिनट किया, 15 मिनट, 30 मिनट्स किया, धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे थोड़ा फास्ट चलेंगे इन बिटवीन। अगर आपको शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ है तो बी वेरी केयरफुल। थोड़ी देर फास्ट चले, फिर रुक गए, फिर स्लो पेस पे आ गए। जॉगिंग नहीं करनी आपने, बिल्कुल जॉगिंग नहीं करनी इस उम्र में। लोग कर रहे हैं, जवान लोग, but you know 50% will suffer from the knee problem once they are about 60. This is on record. हमारे लिए जॉगिंग नहीं है। स्विमिंग करिए, काउंसिल्स आपको दे रही है स्पेशल पासेस, वेरी लिटिल रेट दे आर गिविंग यू द एडमिशन। गो टू द स्विमिंग पे जाइए, वहां जाके करिए, अपने एरोबिक्स करिए, वहां जाके खूब अपने टांगों को, हाथों को हिलाओ, स्विमिंग करिए।
और क्या करिए, अपने ऐसे करिए, रोप 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 रोप, आगे और पीछे। इससे बहुत फायदा हो रहा है। जो लोग ये करेंगे उनका बोन मास अच्छा हो जाएगा। Osteoporosis, such a common disease. 1 in 3 women is suffering after the age of 45 or 50. अगर हम लोग जाएं अपनी बोन डेंसिटी के लिए टेस्ट के लिए, तो that will be the diagnosis. Even the men, they are also suffering. 1 in 5 osteoporosis. Such a common problem. It is known as silent disease. अंदर हमें खाई जा रही है, हमें पता नहीं। और इससे ही होते हैं, just little you move and you get fracture. तब डायग्नोस होता है जा करके, हाँ जिस पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है। तो ये एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। स्विमिंग, वॉकिंग, एवरीडे वॉकिंग, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, घर पे करो। हाँ जी, और दवाइयाँ तो खानी है कॉम्प्लीमेंट्री। द टैबलेट्स आर देयर, विटामिन डी एंड K2। श्रवण जी आपके पास है यहाँ, ये आप खोल लीजिए। आप म्यूट हैं श्रवण जी। श्रवण जी आपके एक पास जगह है? केमिस्ट में नहीं मिलती है। हाँ? मैं लेने के लिए गई थी, वो बोलते हैं ऐसी नहीं है, दो नहीं सेपरेट नहीं, लेनी पड़ती। अमेजन में मिलेगा, अमेजन में। अमेज़न में मिल जाती है। अच्छा, अमेज़न में मिल रही है। हाँ, हाँ हम मिल तो गई, मैंने मैंने ऑर्डर ऑर्डर किया। किया। इस उम्र में, देखिए इस उम्र में खाएंगे तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ये सब नहीं होगा, जब बोन मजबूत रहता है। श्रवण जी, ये टैबलेट नहीं मिलती है, नहीं नहीं मिलेगी, मिलेगी। दो डिफरेंट टाइप की लेनी नहीं, पड़ती है। डिफरेंट मत लीजिए, ये ब्रांड नहीं, कोई भी ब्रांड ले, पर दोनों मिला हुआ एक कैप्सूल बना चाहिए। अब मैं बूट्स में गई थी, तो और वो क्या बोलते हैं करो? हमारे पास नहीं है। बूट्स में नहीं होगा, आपको गो थ्रू अमेजन, ऑनलाइन खरीदना पड़ेगा। हाँ ऑनलाइन अच्छा। में आ गई, मेरी आ अच्छा। गई। अच्छा, ओके। हाँ और भी तो ध्यान रखिए अपना, कितना कैल्शियम ले रहे हो मेरी अपनी मेरी डाइट भी में। आ गई ऑनलाइन। ताकि हम लोग मेरी भी आ वेजिटेबल गई। खाते हैं तो कैल्शियम तो बहुत रहता है, देखो लगता नहीं है। यस, D3 से लगेगा और K2 से आपका हड्डी मजबूत होगा, और है ना। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। Is it in tablet or in the capsule? It's a capsule like this. it's a capsule. It's like capsule like that. Yeah same thing. Okay, thank you very चलिए, much. हमने मेरा ख्याल है I have covered osteoporosis. If you want I can repeat it. नहीं, क्योंकि इसके ऊपर डाइट का काफी ध्यान रखना है, अपने सन बात करना है। रोज बैठिए, जब सूर्य भगवान निकलते हैं उनके दर्शन कीजिए, आधा घंटा बैठिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में करो कौन सी एक्सरसाइजेस जो भी आपने की है, और करनी है वेट लिफ्टिंग, वो भी करनी है। वी विल टच इट अनदर डे बिकॉज आई वांट टू कवर कॉन्स्टिपेशन, और काफी हम करेंगे आज पोजेस इसके साथ, और करेंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट एंड मुद्रा। चलो, कमिंग टू मुद्रा नाउ, देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्रा इज अवर प्राण मुद्रा। और अब हम करेंगे अपना शुरू प्राणायाम। भद्रिका आपने कर ली है, कपाल भारती, कीपिंग इन माइंड अगेन द प्रिकॉशंस, हाइपरटेंसिव हार्ट प्रॉब्लम, स्वेयर एसिडिटी, स्वेयर एस्थमा, धीरे धीरे करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं करने का, करना है। स्वेयर हेडेक नहीं करना, ब्लीडिंग फ्रॉम एनीवेयर नहीं करना, गिडीनेस है, वर्टाइगो है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ प्लीज। कांता बहन एंड कमलेश, म्यूट योरसेल्फ। चलिए, कहाँ थे हम? अगर आपको ग्लाइकोमा है तो नहीं करना, ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज का। और गिडीनेस है, नहीं करना। और इसको करते हैं हम 2 स्पीड में, स्लो एंड मीडियम। फास्ट नहीं कर रहे हम रूम पर, क्लासेस में अब हम कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ हेल्दी यू आर। ओके, अब इसमें मुद्रा पहले लगाते हैं प्राण मुद्रा, क्योंकि हमारा प्राण फ्लो अच्छा हो सारे शरीर में, ऊपर नीचे साइड में। तो प्राण मुद्रा के साथ करेंगे कपाल भारती। फुल अटेंशन इज ऑन एक्सहेलिंग। कीप योर नेक स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर बिहाइंड। अब ये शोल्डर बिहाइंड बार बार क्यों डॉक्टर और योगा टीचर बोलती है, जैसे बिग क्वेश्चन मार्क।
नेक्स्ट वीक बताऊंगी. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हाई वी से दैट कीप योर शोल्डर बिहाइंड, रिलैक्स योरसेल्फ. चलिए शुरू करिए कपाल भारती. अगर आप 10 मिनट कंटिन्यूसली करो और जो कहो कि आप कॉन्स्टिपेटेड हो तो कॉन्स्टिपेशन ठीक जरूर होगी आपकी, क्योंकि कितना प्रेशर जा रहा है आपकी इंटेस्टाइन के ऊपर, कितना प्रेशर जा रहा है. स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्टमक, duodenum, small intestine, large intestine, and the colon, the lower part, the sigmoid colon, जहां जाके फीकल मैटर इकट्ठा होता है निकलने से पहले रेक्टम के थ्रू एनस, वहां इकट्ठा होता है. और मैं तो ये भी कहती हूँ कई दफा टॉयलेट सीट पे आप बैठे हो और लगता है कि पूरा बाहर माल नहीं निकला, तो वही कर लीजिए थोड़ी बहुत कपाल भारती एंड मूव योरसेल्फ साइडवेज. अगर कहीं पर वो फीकल मैटर रुका हुआ है तो बाहर निकल जाता है. Full attention is on the bowel as the topic is constipation. पूरे ध्यान पूर्वक ध्यान करिए अपने बाउल के ऊपर और अंदर रिपीट करिए, आई एम गोइंग टू गेट बेटर, आई एम गोइंग टू ओपन माई बाउल्स रेगुलरली. बहुत फायदे हैं कपाल भारती के. डिटॉक्सिफाइंग प्राणायाम, किंग ऑफ प्राणायाम. सबसे पहले देखिए फेस पे कितना इफेक्ट हो रहा है. ग्लो आएगा फेस के ऊपर, सारे जितने ऑर्गन्स हैं फेस के सारे काम अच्छे करेंगे. The nasal passages, the ear and the eyes, and glow on the face. Then the thyroid gland, parathyroid gland, vocal cords, heart and lungs, and major effect is on abdominal organs. The pancreas, the liver, the gallbladder, spleen, even the reproductive system. और इसके साथ लगाइए मूल बंद भी, उसका भी फायदा होगा. वही तो स्पिंटर है जो काम कर रहे हैं नीचे. मूल बंद के साथ करिए. अंदर ही अंदर जाप करिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. Carry on with a smile on your face. पूरा ध्यान आपकी गट के ऊपर है. I don't want to suffer from constipation. The next mudra is अपान मुद्रा. ये कंट्रोल करती है आपकी कॉन्स्टिपेशन को, बाकी सारी टॉक्सिन निकालती है सारे शरीर से. इसको करते हुए एक्सरसाइज करेंगे साथ साथ. कपाल भारती विद अपान मुद्रा. और ये जो मुद्रा है ये हमारी बोन्स के लिए भी बहुत अच्छी है. रीजनरेशन ऑफ बोन विद दिस मुद्रा. जिनको आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, उनको ये मुद्रा ज्यादा लगानी चाहिए. कॉन्स्टिपेशन भागती है इससे. आज मिल गया मूल बंद भी. So many benefits. Not to get prolapse. Control both the fecal matter and the urine. Urinary incontinence control.
not to get too much infection of urinary tract. बार बार urinary tract infection हो रहे हैं. Cystitis, so common in women. Carry on. Next one is Varun Mudra. There is lack of water in the body which is giving me constipation. So I want to increase the water in my body. Varun Mudra. वरुण भगवान की जय. वरुण भी हमारे देवता हैं. And make sure the whole abdomen is moving. Upper part, middle and the lower. Well done. Relax. इसके बाद करेंगे acupressure points for the constipation. सबसे पहले है आपका, और उसके साथ भी हम करेंगे अपनी कपालभाति. सबसे पहले है आपका where are your columns? On the hand this area. This area. यहाँ है हमारी कॉलम. तो इसको करना है अपने प्रेस को. करिए साथ में कपालभाति. अब दोनों हाथों में करना है. ये पार्ट जो है, ये पार्ट, इसको प्रेस करते जाइए. दिखाने के लिए ऊपर हाथ है, वैसे तो अपने इसको रखिए अपने नी के ऊपर और करिए इसको. लिफ्ट अप योर स्पाइन, शोल्डर बिहाइंड. स्माइल कीजिए. मेरी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो रही है. आई एम डूइंग माई प्रैक्टिस रिलीजियसली. ध्यान पूर्वक मैं अपना काम कर रही हूँ. Carry on. How long to carry on? Depending on how worse is your constipation. Ten second करो, 30 second करो, 1 minute करो, 2 minutes करो, maybe 10 minutes करो. एक एक को carry on. ठीक होने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है. दोनों हाथों में कर लिया आपने. वेरी गुड. अब नेक्स्ट पॉइंट इज योर स्टमक पॉइंट, विच इज हेयर. ये जो है, ये एरिया, ये स्टमक का है. इसको प्रेस करिए और ध्यान आपका है आपकी बॉल्स के ऊपर, इंटेस्टाइन के ऊपर, कोलन के ऊपर. दूसरे हाथ में भी करेंगे वैसे ही.
जब अपने आप करेंगे तो इसको ज्यादा टाइम करेंगे। अंदर ही अंदर जाप कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं कपाल भाती। ध्यान पूर्वक योग। टेक योर माइंड टू द ऑर्गन वेयर द प्रॉब्लम इज। उसे कहते हैं धारणा। धारणा एंड ध्यान अष्टांग योग के जो स्टेप्स हैं। चलिए, the next one is the junction of your wrist and the hand this side. जो middle है that is your bladder, side पे जो है वो आपका constipation point है, इसको प्रेस करिए। ठीक, मिडल जो है that is bladder के लिए है। ये जो एरिया है थंब के लेवल पे नीचे जाता हुआ जंक्शन ऑफ योर हैंड एंड द रिस्ट, वहां उसको प्रेस करना है। और प्रेस कैसे करने हैं? आपने पल्प के साथ, नेल नहीं घुसेड़ना अंदर, पल्प के साथ ऊपर नीचे। एंड यू आर डूइंग नाउ कपाल भाती। और कपाल भाती नहीं करना तो करिए भद्रिका प्राणायाम, ब्रीथ इन एंड आउट। कपाल भारती से और बड़ा फायदा हो रहा है, इसलिए हम कंटिन्यूअसली कपाल भारती कर रहे हैं। इसी तरह दूसरे हाथ में ये एरिया, ये वाला, well done. The next is your थोड़ी, इसको प्रेस करो कपाल भारती के साथ। सब कर रहे हो ना? देखो जरा, थोड़ी के ऊपर एक उंगली से भी कर सकते हो, दो से भी कर सकते हो। प्रेस करो हार्ड, कॉन्स्टिपेशन को भगाना है। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, यहां से मैसेज आ रहा है हमारे ब्रेन को, और ब्रेन मैसेज वापस भेज रहा है हमारी कोलन को, गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम इन द बाउल। बाहर फेंकिए उस फीकल मैटर को, तो वहां के स्पिंटर्स ओपन अप हो जाते हैं। एनस है ना नीचे, जो नीचे जहां से निकलता है ये माल, एनस, उसको खोलता है उसके स्पिंटर को, और बाहर निकल जाता है सारी गंदगी। हाउ दिस इज वर्किंग, यू नो। यहाँ करने से ब्रेन को मैसेज आ रहा है, ब्रेन मैसेज वापस भेज रहा है उस ऑर्गन को, बी एक्टिव एंड डू द वर्क। साथ में करिए कपाल भाती। अब कॉन्स्टिपेशन भगानी है ना हमें, बहुत दुखी करती है ये सारी बीमारियों की। ये माँ है, मदर ऑफ ऑल द डिजीजेस, कॉन्स्टिपेशन। चलिए अब आगे चलते हैं, और कौन से पॉइंट्स है? एनीबॉडी, एनीबॉडी आइए काफ मसल पे, काफ मसल को करिए। इसका भी कनेक्शन है हमारी बॉल के साथ। काफ मसल दोनों, इसको अच्छी तरह रब करो। अच्छी तरह ऐसे, थोड़ा ऑयल लगाकर, क्रीम लगाकर खूब करो इसको मैसाज।
डॉक्टर साहब इसको ऊपर की तरफ करना चाहिए या नीचे की तरफ? अरे कोई खास आप फर्क नहीं पड़ता, ऊपर या नीचे? क्योंकि मसाज कहते हैं यूजली शुड गो टुवर्ड्स द हार्ट, ओके पर इसमें आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। ये तो ऊपर नीचे नहीं ना जा रही, क्योंकि जी। जितने ये काफ मसल्स हैं उनको हमने रब करना है अच्छी तरह। इससे आपका लिम्फेटिक सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा और आपकी कॉन्स्टिपेशन भी भाग जाएगी। चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, लगे रहना है बस, दोनों दोनों टांगों को करना है। एक काम करने से कई लाभ हैं। जैसे मैंने कहा ना, लिम्फेटिक सिस्टम ठीक कर रहे हो, आपका सर्कुलेशन भी बढ़ जाएगा और आपको अगर वेरिकोस वेन्स प्रॉब्लम है तो उसमें भी हेल्प करेगा। फिर ऊपर नीचे करो, नीचे जाओगे तो ऊपर आओगे फोर्थ। पर ड्राई स्किन नहीं होनी चाहिए, हमेशा ऑयल लगाकर, यू कैन यूज एनी ऑयल, इवन घी और एनी क्रीम, लगे रहो। अच्छा, ये कर लिया, इसके बाद और क्या करना है आपको? आप टॉयलेट सीट पे बैठे हो, यस, समझो ऐसे मैं बैठी हूँ। ओके, दो चीजें और आपको बताऊंगी मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हेल्प कर रही है। और आजकल अगर आप जाओ बाहर रेस्टोरेंट में, जिन लोगों को इन होटल्स में रादर, जिन लोगों को इस चीज की आइडिया हो गया है कि कैसे गट काम कर रही है, आजकल देखोगे कई होटलों में स्टूल्स पड़े हैं टॉयलेट में। समझो ये मेरा स्टूल है, ठीक। अब पहले तो मैं बैठी हूँ अपनी सीट पे, टॉयलेट सीट पे। अब मेरी जहां पर माल इकट्ठा हुआ है एंड में जाकर, दैट इज सिग्मोइड कोलन व्हिच इज ऑन द लेफ्ट साइड। टॉयलेट सीट पे बैठे हो, लगता है कि ज्यादा माल बाहर नहीं आ रहा, तो इसको रब करो अच्छी तरह, मैसाज करो, मैसाज करो इसको अच्छी तरह, मैसाज करो इसको। आप पानी छीक पी रहे हो, ये नहीं कि मैं पानी ज्यादा नहीं पीती, पानी इनफ लेती हूँ, पर फिर भी मुझे प्रॉब्लम है, तो इसको थोड़ी देर ऐसे रब करते जाइए। अच्छा, फिर समझो ये मेरा स्टूल है, नजर आ रहा है आपको? ये जितनी भी छोटी चाहे हाइट का हो, डजंट मैटर, ये मेरा स्टूल है, ठीक है। टॉयलेट सीट पे बैठी हूँ, ये स्टूल है, उसके ऊपर मैंने अपने फीट रखे, ठीक। उसके बाद थोड़ा आगे झुकिए, अपने एल्बो को रखिए अपनी नीज पे, ठीक। और अब सीधे हो जाओ, तो इससे आपका जो फीकल मैटर है बड़ी इजीली निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था वो सीधा हो जाता है ऐसे करने से, और रेज करने से बहुत फायदा है। तो इसलिए कहते हैं कि हर एक टॉयलेट में आपको अपना एक स्टूल रखना चाहिए। हाइट कैन बी 6 इंचेस, 8 इंचेस, 4 इंचेस, डजंट मैटर, किसी भी तरीके से अपने फीट को अपने स्टूल पे रखो और आगे झुकिए, ऐसे करिए, आपके एल्बोज ऑन योर नीज, पहले झुक रहे हो फिर सीधे हो जाओ, और देखोगे कि सारा फीकल मैटर बाहर निकलना शुरू हो गया। तो आप कई दफा देखोगे, कई दफा आपको ये आ रहे हैं आजकल जो आते हैं ना अपने सोशल मीडिया पे, कि कई होटलों में उन्होंने स्टूल रखे हुए हैं, कई घरों में भी स्टूल है। तो आप भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, छोटा सा स्टूल खरीद लीजिए, रख लीजिए आपने वहां और ट्राई करिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इट्स ए वेरी बिग प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन। इससे आपको, कई लोगों को जिनको होता है ना इंसोम्निया,
और इंसोम्निया मेन कॉज इज स्ट्रेस, उनकी वजह से भी उनको बहुत कॉन्स्टिपेशन है। हाँ जी बहन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? तो ये चीजें अगर आप करें तो आपको काफी हेल्प मिल सकती है। अब श्रवण कमिंग जी, टू आपका द सुना वेरियस ही नहीं जाता है। हाँ जी श्रवण जी coming आप to म्यूट various पर हो, causes सुनाई now, नहीं देता। pardon? डॉक्टर बल्ला कनाडा में हैं, उनके बेटी डॉक्टर हैं। He's proven it medically, done a report on the medical science. स्टूल पे रख के पैर रखने से आपका जो इंटेस्टाइन है वो बेंड नहीं होके सीधा हो जाता हाँ है। जी Then feces सीधा हो जाता है। can come out naturally. तो उससे आप कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। तो आपने जो बात जी। बताया बहुत सही बताया, वेल डन, थैंक यू। बोले हाईलाइट ओके कर तो दें। स्टूल खरीदिए आप सब, बहुत बड़ा स्टूल नहीं लेना, मेरे ख्याल अबाउट में भी 6 inches मोर देन इनफ। आई थिंक ये स्पेशल भी आता है उसका स्टूल ना। स्पेशल तो अब मैं खरीदने नहीं जाऊंगी, मैं तो ऑर्डिनरी, मेरे पास तो है लकीली। अच्छा नहीं, वो प्लास्टिक का आता है स्पेशल, मैंने हाँ। हमारे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था अच्छा उसके लिए। कितने का आता है? पता नहीं, वो बहुत टाइम पहले किया था। हाँ पहले की बातें थी, अब तो कोविड के बाद तो हर एक चीज वो तो हार्डवेयर जो शॉप में जाके प्लास्टिक का स्टूल खरीद लें, प्लास्टिक का है ये। प्लास्टिक का स्टूल ये खरीद लीजिए, प्लास्टिक का शेप है। हाँ वो एक दो प्लास्टिक तीन का में स्टूल मिलता खरीदिए और एक्सरसाइज करिए खूब। है। मेन चीज है एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज व्हिच इज गिविंग अस कॉन्स्टिपेशन एंड ईटिंग द रॉन्ग फूड। ये जो है ना सब तला हुआ माल हमारा, खासकर हम तो बहुत ही खाते हैं, पार्टी इतनी होती है, हम क्या करें, और पानी ज्यादा पीते नहीं। इसलिए कहते हैं सुबह उठ के कितने 2 गिलास पानी पियो, गरम वार्म वाटर ना हो, उसके बहुत फायदे हैं वार्म वाटर के। आपकी गट एकदम काम करेगी, उसको स्टिमुलेट मिल जाता है, जो थोड़ी हीट है वाटर में वो स्टिमुलेट करेगी। सो हैव 2 to 3 glasses of warm water in the morning। और उसके और भी बड़े फायदे हैं, आपकी एसिडिटी भी खत्म हो जाएगी। कई लोगों को प्रॉब्लम हो रही है ना एसिड रिफ्लेक्स और हर्निया, यू नो हाइटस हर्निया, उसमें भी हेल्प करता है। अगर उठकर फटाफट पानी पी लो 2-4 ग्लासेस, और पीना कैसे है, एकदम गल्प नहीं करना, धीरे धीरे, जैसे सॉलिड की तरह, पानी को सॉलिड की तरह और सॉलिड को पानी की तरह। So these are the main things which we are supposed to do। अब करेंगे अपनी एक्सरसाइजेस। और तीसरी चीज क्या है जो हम अवॉइड कर सकते हैं, कितना टाइम लगना चाहिए अपने बाउल ओपन करने के लिए, नॉट मोर देन 2 minutes। पर लोग आजकल तो बड़ा फैशन है भैया, टॉयलेट में उनके टीवी भी लगे हुए हैं और भी कई गैजेट्स हैं उनके वहां लगे हुए, और न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड व्हाट नॉट, दे सिट देयर एंड बेचारों को कॉन्स्टिपेशन इतनी ज्यादा है। हम सब ये नहीं करते, गए फटाफट करके बाहर, चलो छुट्टी, जैसे स्वामी जी कहते हैं फटाफट जाओ करके बाहर आ जाओ। इसीलिए वो कहते हैं जब नहाते हो ही डजंट टेक मोर देन 2 minutes। पर आचार्य जी कहते हैं नहीं जी नहीं, 4 मिनट बाद में रहो ताकि अच्छी तरह अपने आप को क्लीन करो, रगड़ो। तो हम करते हैं 2 से 4 मिनट इन बिटवीन स्वामी रामदेव एडवाइस एंड आचार्य बालकृष्ण, दोनों को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कितने लोग 2 मिनट में भाग आते हैं टॉयलेट करके, हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग, जितना टाइम यूरिन पास करने में लगता है उतना टाइम उसमें होना चाहिए। पर वी आर वेरी लकी माय डियर, सम आर सिटिंग देयर फाइटिंग, और कभी अपने आप को स्ट्रेस नहीं करना। इसी वजह से जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन, उनको क्या है, हेमोराइड्स, पाइल, एनल फिशर, एनल टैग, रेक्टम प्रोलेप्स, रेक्टम भी बाहर आ जाता है, एनस भी बाहर आ जाती है, क्योंकि इतना प्रेशर लगाते हैं। फिशर आता है। हाँ तो इसलिए कभी स्ट्रेस नहीं करना अपने आप को, अपना ध्यान रखना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना और प्रॉब्लम्स हो जाती है। हेमोराइड्स का वजह ही ये है, कोई कहे मेरे को हेमोराइड से कहना है इसका तो कॉन्स्टिपेशन है, डेफिनेट, उसकी और कोई कारण है ही नहीं। और क्या कहते हैं कि जब आपको अर्ज आए किसी भी चीज की, दिस इज आयुर्वेदा, यूरिन की आए, चले जाओ फटाफट टॉयलेट, स्नीज करो,
फटाफट स्नीज कर दो, रोको नहीं अपने आप को। कैसे मीटिंग में होते हैं तो हम रोकते हैं, ना ना ना, बिल्कुल नहीं रोकना। और इसी तरह बाउल की अर्ज जाए, डोंट डिले इट। सारी बीमारी इसीलिए पैदा हो रही है कि वी आर वेरी सॉर्ट ऑफ ashamed और वी आर वेरी कॉन्शियस, हम रोकते हैं अपने आप को, अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे, इसलिए हमें बीमारियां हो रही हैं। एंड दैट गोज अकॉर्डिंग टू योर विंड आल्सो। स्नीज करते हैं तो लोग कहते हैं ब्लेस्ड यू, अरे स्नीज में तो गंदगी बाहर आई, और हवा निकले तो लोग क्या हो गया इसको, क्या करती क्या करती क्या करती, कि बेचारे नहीं रोक सकते। उसमें भी उनको ब्लेस कर देना चाहिए, वैसे तो नहीं, उनको ब्लेस करना चाहिए, पर नहीं करते हम लोग। तो ये जो अर्जिस है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, कभी अपनी होल्ड मत करिए, खासकर स्नीज का लोग करते, जाने दो उसको, बाहर निकल लो, हाँ अपना टिश्यू रख लो आगे और स्नीज करो। घर में सब्जी का तड़का लगा रहे हैं और अर्ज आ रही है करने की, यूरिन या फीकल मैटर, अभी करती हूँ अभी करती हूँ अभी करती हूँ, और तब तक वो खत्म हो जाती है। वो जो टॉक्सिन अंदर खूब गैस प्रोड्यूस कर रही है, तो हो गया कोलाइटिस, और वो दिमाग को भी चढ़ जाती है गैस, धीरे धीरे नीचे से ऊपर जा रही है ना सारे शरीर में, जाके हेडेक देगी अच्छी खासी। तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन को बड़ा सीरियस लेना है हमने। अब इसके लिए आप सारे आसन कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो, लेट के कर सकते हो। कौन कौन से आसन हैं? Can I ask something, Mrs. Yes, Doctor? my dear. You know, when we can we take the tablets for constipation? Is it good? This is a very difficult question. Where are you, handsome man? Is Yeah, good. Ayurvedic tablets? Listen, where we are. Just stay there. You mean Senna? Listen, you have got constipation. Yeah. What is the definition of constipation? What is the definition? I should tell you first. Yeah. According to Ayurveda, the constipation definition is if you are not opening your bowels every day. not every day, sorry, my dear. If you're opening less than 3 times a week, if you are opening your bowel less than 3 times a week, that is labeled as Ayurvedic language constipation. Everybody doesn't open every day because there are various reasons. How much they are eating, how much high fiber they are taking, how much water they are drinking. Some people do a lot of fasting. खासकर हमारे लोगों में भी कई मंगलवार का व्रत है, सोमवार का व्रत है, एकादशी है, और उसके बाद अब नवरात्रे आ रहे हैं। तो कितना आपने खाया उसके अकॉर्डिंगली मिलेगा ना बाउल का जो बाहर निकलना मसाला। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिपेशन आपको है, अगर रोज ही आपको हो कि मैं जाती हूँ टॉयलेट, कई लोग नहीं जाती, but they're perfectly healthy. They're perfectly healthy because they haven't got any other problem. So आपने अपने को डिफाइन करना है। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन, रियल कॉन्स्टिपेशन है, they feel miserable. इसलिए कहते हैं जब हम ऑल बाउल ओपन करते हैं तो हमारी प्रमोशन हो जाती है, हमारे फेस पे इतनी खुशी आ जाती है। अब आपको कॉन्स्टिपेशन है, अब कई दफा ना जूम के ऊपर पर्सनल पूछना बड़ा मुश्किल होता है कि आपको कितनी कॉन्स्टिपेशन है, हंसा बहन? Yeah, sometimes I don't go all day and I keep worrying. I think there is something inside, but it's not coming out. But So do I you take open up at all or not? कुछ पास करते हो या नहीं करते? only a little bit. It should be, I think it should clear out my stomach, but अच्छा, then we are coming to the point what you are eating. उसके लिए आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, सबसे पहले वाटर का ध्यान रखिए, कितना पानी पी रही हो दिन में? पानी 8 तो से मैं 10 गिलास पीती हो पानी? I drink about 5 to 6 तो glasses. उसको इंक्रीज करिए। Okay. अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा करते हो तो और इंक्रीज करो उसको, क्योंकि यू आर स्वेटिंग आउट, पसीने से आपका पानी बाहर निकल रहा है, तो आपको थोड़ी माइल्ड डिहाइड्रेशन हो सकती है। कितनी फिजिकल एक्सरसाइज करते हो घर में, कितनी एक्टिव हो?
I बाहर keep, कितना सैर करने जाती हो? yeah, योगा I practice? go for nearly 1 hour for a walk. every There you day. are. Do you drink some water while you're doing your walking? Yeah, I take bottle of Bottle, water. but do you drink? Yeah, Very I good. sit down on the bus station, bus stop or something, and we Very good. Clever you drink. are. The other thing is you have to look the water intake. Okay. और उसके बाद देखो खाने का क्या खाती हो. How much high fiber you take. I have ब्राउन a, ब्रेड लेती हो, ब्राउन राइस लेती हो, पास्ता लेती हो, कि आप व्हाइट फ्लावर ज्यादा खाती हो, मैदा शैदा. I eat some. I have a breakfast in the morning with the 2 slices of bread or something like this. Which brown bread? Brown ब्राउन bread. ब्रेड. Yeah. कभी सीधी ब्रेड भी ली है आपने? Seeded bread. सीधी दो लेती हो. और हाँ, लंच और उसके साथ और क्या लेते हो? just butter and marmalade tea, cup of tea. कप ऑफ टी. अच्छा ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम कितनी चाय और कॉफी पीते हैं थ्रू आउट द डे. Yeah. अगर I बहुत have, पीते हो now I have just- only 1 cup of tea in the morning. After yoga, I do only 1 cup of tea. अच्छा, तो बाकी और तला हुआ खाना कितना खाती हो? वो बहुत नहीं खाती, बहुत बहुत नहीं कम खाते. खाती. तो उस सेंस में आप और आप ज्यादा मैदा शैदा नहीं खाते. मैदा And then I have my समोसे dinner. गुलाब जामुन नहीं खाती? कभी कभी खा लेती. कभी कभी. तो उस दिन ज्यादा एक्सरसाइज करनी है, पानी ज्यादा पीना है. अच्छा आप दालें कितनी लेते हो? लेंटिल्स एंड राजमा वो और तो ब्लैक जब आइड भी बीन्स. मेरा डिनर होता है ना तभी लेती हूँ एक दफा दाल ज्यादा खानी है, दाल. लेंटिल्स ज्यादा खाओ. अगर आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ले सकते हो, राजमा ले सकते हो, बट ट्राई टू टेक राजमा ड्यूरिंग द डे टाइम, नॉट इन द इवनिंग. फिर Yeah. आपके जितने ग्रीन वेजिटेबल्स है वो कितने खाती हो? खूब ग्रीन वेजिटेबल्स. ग्रीन वेजिटेबल खाओ. जैसे कहते हैं ना, ये जितने भी ग्रीन वेजिटेबल है, आपका साग है, किसी भी तरह का साग, केल है, स्पिनच है, इनको Yeah. ज्यादा लो. और साथ में कहते हैं जो शलगम है ना, टर्निप्स, उनके जो लीफ मिलते हैं ना, कई दफा वो उसके क्या? साथ हम क्या? टर्निप, शलगम, टर्निप, व्हाइट Turnip. राउंड हाँ. शलगम, हाँ. उसके जो पत्ते हैं उसको खाओ, उसकी सब्जी Okay. बना के खाओ, उसमें बहुत फायदा देता है वो. और उसके बाद आपको लेना है दिन में लौकी का जूस. अगर आपको कोई जॉइंट प्रॉब्लम्स वगैरह ज्यादा नहीं है तो लौकी का जूस लो, एलोवेरा जूस लो. और जो आपने खाना लेना, जैसे स्प्राउटेड लो, जैसे आप मूंग की दाल को स्प्राउट करो, स्प्राउटेड ज्यादा लो ग्रेन्स, उससे आपको फायदा होगा. और फ्रूट में आप कितना फ्रूट खाती हो? जिस फ्रूट में ज्यादा पानी है उसको लेना है. मेलन खाओ, पियर खाओ, रेड बरीज खाओ, ऑरेंज खाओ, प्रून्स खाओ, फिग्स खाओ, योगर्ट खाओ खूब. तो ये ध्यान रखना कि आपका खाना कितना है. और उसके बाद पानी पी लिया, खाना ठीक खा लिया और योगा प्रैक्टिस कर ली, तो फिर कॉन्स्टिपेशन कहाँ होगी भैया? अब ये पॉइंट्स पे आपने ध्यान देना है. अगर ये करने के बाद भी फायदा नहीं होगा तो फिर और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ज्यादा बल्जिंग नहीं होती, गैस नहीं बनती, एंड यू आर नॉट हैविंग लैक ऑफ स्लीप. देखो अगर ये नहीं है प्रॉब्लम तो फिर फिक्र करने वाली ऐसी बात नहीं है. हो सकता है कि आप घंटा बाहर जाते हो वॉक करने, ठीक, और खाना भी बहुत ज्यादा नहीं खा रही. अमाउंट कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा. कितना खाते हो, थोड़ा खाते हो, मीडियम खाते हो? बहुत अगर नहीं खाती मैं. हाँ जी, मैं बहुत नहीं. I don't eat too much. हाँ, टू मच नहीं खाया जाता. और हाँ. दूसरा, ये दिन में कितनी बार खाती हो? सिर्फ 2 बार. 2 बार, सुबह और शाम. हाँ. अभी ब्रेकफास्ट करेगी, शाम को 5-6 बजे खाना खाएगी, रोटी खाएगी. क्यों लंच नहीं खाओगी? ना अभी खाए 12-11 बजे तो ब्रेकफास्ट करेगी, फिर रोटी कहाँ खाए, फिर 5 बजे खाती. तो फिर तो ज्यादा नहीं ना खा रहे. ध्यान दो थोड़ा सा और हाई फाइबर इंक्रीज करो और पानी भी बढ़ा लो. लेट्स सी हाउ इट गोस. ओके. क्योंकि आप योगा भी बहुत कर रहे हो, वॉक भी कर रहे हो, तो थोड़ा लगता है कि आपकी शायद खाना इतना इनफ नहीं जा रहा. पर अगेन वो कहते हैं बार बार मत खाओ. डोंट गो एंड ईटिंग द होल डे.
Yeah. और देखिए ये जो पॉलिसी है ना, आई विल से क्वाइट ओपनली ऑन द रूम, ये सबको अप्लाई नहीं करती। जैसे कहते हैं 2 बार खाना खाओ, अब कई कंडीशन ऐसी हैं हमारी बॉडी में जिसमें वो कहते हैं 2 की जगह आप 4 बार खाओ, उतना अमाउंट ही खाना है कैलोरीज, उसको डिवाइड कर देना। कई ऐसी बीमारी हैं जिसमें हम लोग कहते हैं कि आप ज्यादा खाओ, जितनी कैलोरीज लेनी है उनको 2 बार में डिवाइड नहीं करना, उसको 4 बार करना है। जैसे कई लोगों को ना प्रॉब्लम है कि वो ज्यादा नहीं खा सकते, थोड़ा खाते हैं तो दे फील फुल, उनको कहते हैं कि बार बार खाओ। जैसे किसी को माइग्रेन हेडेक है, सिर दर्द होती है, तो हम तो कहते हैं बार बार खाओ, जब भी लगे हेडेक शुरू होने जा रही है, थोड़े से कार्बोहाइड्रेट ले लो, एक रोल ले लो, उसके ऊपर लगा लो स्लाइट बटर और वट एवर यू लाइक, वो खाओ। ये तो हमारी अपनी एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस है। तो इसलिए ये जो होते हैं ना ट्वाइस इन अ डे वी आर ईटिंग, दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन। यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू योर ओन बॉडी। तो ध्यान रखो कितना खा रही हो, थोड़ा आके देखो कि हो सकता है अगर आप लंच टाइम पे प्रॉपर मील लो, आप कह रही हो ब्रेड ले लूंगी 2 स्लाइस, उसके ऊपर बटर या जैम वट एवर, दैट इज नॉट इनफ फॉर यू, दैट इज नॉट फुल मील, दैट इज नॉट फुल मील। लंच मील you mixed everything, your carbohydrate, your protein, your fats, proper lunch लीजिए आप। ये proper lunch नहीं है, ये proper lunch नहीं है। जैसे क्लास खत्म होती है 10:30 बजे, आपने शुरू में कुछ नहीं खाया, तो उस समय अगर आपको लगे तो उस समय प्रॉपर लंच ले लो, जिसके अंदर आप सब्जी भी लोगे, रोटी भी होगी, सैलड भी होगा, 6 तरह की चीजें होंगी आपके पास टेस्ट की, कहते हैं जैसे। और उसमें कहते हैं थोड़ा मीठा भी ले लो, अगर आप डायबिटिक नहीं हो तो। आप खाना इनफ नहीं खा रहे, आई डोंट थिंक। शाम का खाना क्या कितना लेती हो शाम का? about 2 से 3 रोटी खाती हूँ सब्जी शाम के को? साथ। हाँ। और सब्जी कितनी खाती हो? इतने से दाल भी खाती हो साथ में? दाल सब्जी का एक ही चीज? हाँ, सब्जी और दाल एक ही होती है ना, दाल। और ये ना, तो वैसे तो हम बनाते हैं, दाल सब्जी बनती है ना घर पे, तो कहने का मतलब शाम का आप हैवी कर रही हो, शाम का खाना हैवी। और कितने बजे खाती हो? About between 5 and 6. अच्छा, 5-6 बजे आपने खाया, सोते कितने बजे हैं? About 9:30, 10. अच्छा, तो गैप तो ठीक हो गया। ये 2-3 रोटी आप खाओ 11-12 के बीच में, ठीक Okay. है? और हाँ। दाल भी खाओ, सब्जी भी खाओ, सैलड भी खाओ, खट्टा भी खाओ, थोड़ा सा अगर डायबिटिक नहीं तो थोड़ा सा मीठा भी खाओ। और सैलड पहले खाना है, खाना मेन खाने से पहले सैलड खूब खाओ, इतना अच्छा सैलड मिल रहा है। कुकम्बर खाओ, टमाटर खाओ, लेट्यूस खाओ, वट एवर, ऑल दोज थिंग्स यू शुड टेक। मूली खाओ, थोड़ी मूली खाओ, और उस समय आप दही खाओ, खाने के साथ दही लो जरूर 1 कटोरी। Dr. Kapoor, खाना can जो I है add, ना लंच को आप बढ़ाओ, लंच को बढ़ाओ, और शाम का कम करो, Dr. Kapoor, शाम can I का add कम some? करो। 2-3 चपाती नहीं, 1 चपाती, या बिना Okay. चपाती के भी चलेगा। सिर्फ दाल सब्जी खाई, थोड़ा फ्रूट ले लिया, और सोने से पहले थोड़ा दूध ले लिया, इफ यू कैन टॉलरेट द मिल्क। उसके अंदर थोड़ी डाल दो हल्दी, फर्स्ट क्लास नींद आएगी साथ में। I take a Horlicks drink sometimes. नहीं, हॉर्लिक्स में बहुत शुगर है। स्वामी जी ये सब कंडेम करते हैं, हॉर्लिक्स चॉकलेट। वो कहते हैं हल्दी ले लो, हल्दी, और धीरे धीरे उसका टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। पहले थोड़ी डाली, फिर उसको बढ़ाते गए, और हल्दी से सारी बीमारियां दूर होती हैं, सारी बीमारियां। Dr. Kapoor, I can add something for हाँ Hansa जी case. बिल्कुल, ओ I वेलकम। think हंसा जी को है ना, हमारे ख्याल में IBS है, या उनको कलोन में इनको चाहिए कलोन क्लींजिंग। कलोन ब्लॉक में बहुत स्लज बैठा हुआ बहुत दिन से, इससे निकलने में मुश्किल होता है, ड्राई फिशेस बहुत है, तो शी हैव टू गेट सन प्रक्षालन। हम लोग करते हैं, स्वामी जी कराते हैं जो ग्राम में सन प्रक्षालन। हाँ जी, हाँ जी। वो चाहिए इनको, इनके नीचे में पैसेज में टू मच ड्राई फिशेस है, एंड दैट्स व्हाई शी हैज कॉन्स्टिपेशन। जो कंट्रैक्शन होता है वो नहीं हो रहा मसल का, इंटेस्टाइन का जो कंट्रैक्शन होता है तो मेक्स द बाउल मूव डाउन टू द एग्जिट पॉइंट, वो नहीं हो रहा है।
and also she might have IBS as well. इनकी बत्ती करनी चाहिए मेरे ख्याल। हाँ वही बात, इसको एनिमा एनिमा लेना पड़ेगा, और उसके बाद if you can't do sun prakshalan, you can go to colon therapy and get colon cleansed with the gravity. They put the water through the back passage या and then suck the water out. That will make you lighter. Definitely, if you do that, your problem will go away, guaranteed. but on the whole she is quite healthy, you know. That's what I'm She saying. hasn't got any symptoms from colitis. नहीं कोलाइटिस नहीं, उनके सिस्टम में Clearance नहीं हो रही। कंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, जो बॉल का कंट्रैक्शन होता है वो नहीं हो रहा प्रॉपर। दैट्स व्हाट कॉजिंग देखिए प्रॉब्लम। स्टूल ट्राई करो, जो स्टूल खरीद रहे हैं ना अपने, उसको ट्राई करो थोड़ा, और पानी को बढ़ाओ सबसे पहले। हम सन प्रक्षालन रोज सुबह करते हैं। कैसे करते हैं? एक तो आपने बताया काफ मसल, विंडो पर पैर रख के पैर को दबाते हैं काफ मसल को। ये इंडिया में टॉयलेट नीचे होता है, नीचे बैठते दबते के साथ टॉयलेट निकल जाता है, ये दबाना पड़ता है हाथ से। और उसके बाद तारासन कर लो, रोज तारासन। हाँ तारासन, और उसके बाद जो होता है सन प्रक्षालन का एक्सरसाइज, ये तो होता है साइडवेज बेंडिंग, एंड देन ये वाला हो गया, लुक एट योर हील, ये करना है। और फिर है ना, फिर टॉयलेट सीट पे बैठ के थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ता है। ये सब करने से पेट साफ हो जाता है। I do that every morning and I have a good motion is like a promotion, है जो आपने बोला, हम भी यही बोलते हैं। Okay, sorry to प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन। Sorry I'm butting in, but I think you need a colon therapy. colon therapy करेंगे आप ठीक हो जाएगा। देखिए Thank जो you. भी मूवमेंट करोगे बॉडी की, Thank you whatever the so movement is there, that is going to help you for the constipation. Yes, इसलिए yes. टाइम परमिट नहीं करता इस समय। हाँ, बैठ yes. के करो अपनी एक्सरसाइज, खड़े होके करो, जैसे ताड़ासन बताया अभी श्रवण जी ने, और कटी चक्र आसन करो जहां भी बॉडी, फिर वक्र आसन ऊपर नीचे करो, फिर लेट के करो। कौन कौन से आसन? मंडूक आसन बैठे बैठे करो, पहले जितना करोगे उतना आप एक्टिवेट कर रहे हो। मंडूक आसन के सारे पोजेस करिए, और फिर लेट कर पेट के बल आप सारे करिए अपना। कौन सा करना है? मरकट आसन, खूब मूवमेंट हो रही है उसके, तीनों पोजेस करने हैं मरकट आसन के। और उसके बाद करिए आप अपना पवन मुक्त आसन, नौका आसन, सेतु बंद आसन, ये सारे आसन करिए। जहां पर मूवमेंट होगी एब्डोमेन की, गट बेचारी अंदर से काम करेगी। इसी तरह पेट के बल लेट कर आपने करना है, मकर आसन करना है, शलभ आसन करना है, कोबरा आसन करना है, सारे पोजेस ये सारे करोगे। और जैसे सुबह उठे ही अपने बेड में ही लग जाओ, स्ट्रेच करो एकदम ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और भागोगे टॉयलेट एकदम। So these are the simple steps we can do. जितनी भी हम प्रैक्टिस रोज करते हैं वो सब कवर करता है, और यही ब्यूटी है योगा प्रैक्टिकल की। तो कोई भी बीमारी है, सेम ही आसन है, whether you are doing sitting, standing, lying down on the mats, जो मूवमेंट कर रहे हो, और हंसते खेलते करते जाइए, कॉन्सेंट्रेशन भाग जाएगी। और ध्यान रखिए, गोइंग बैक टू हाई फाइबर, दैट इज नॉट फॉर एवरीवन। कई लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम है, जो टॉलरेट नहीं कर सकते हाई फाइबर, तो इसलिए हमेशा कंसल्ट करिए अपने डॉक्टर को। लोग बहुत बोलते हैं हाई फाइबर, दैट्स नॉट फॉर एवरीवन। कई ऐसे जिनको हम कहते हैं लो फाइबर डाइट आपके लिए, क्योंकि आपकी बीमारियां ऐसी हैं, और वो भी सारी पेट की बीमारियां हैं, गट की प्रॉब्लम है, कुछ और नहीं। जैसे उसका एग्जांपल मैं दूं आपको, डाइवर्टिकुलाइटिस, जब आपकी गट थोड़ी बाहर जानी शुरू हो जाती है तो वहां पाउचेस बन जाते हैं। अगर उसमें आप बहुत हाई फाइबर डाइट लोगे तो बस्ट कर जाएगी, और बस्ट कर गई तो फिर गए ऊपर। इसलिए बी वेरी केयरफुल, खूब खाओ, फ्रूट खूब खाओ जिसमें ज्यादा पानी है, मेलन है, पियर है, रेड बेरीज है, ऑरेंज है, प्रून है, फिक्स खाओ, रोज प्रून्स खाओ, योगर्ट खाओ, मुनक्का खाओ। मुनक्का is very good for various things. Even you know when you're diabetic you can take मुनक्का। अगर जैसे डायबिटिक हैं और उनको लगता है उनकी ब्लड शुगर लो हो रही है या उनकी एनर्जी डाउन हो रही है, तो सक करिए मुनक्का, उसका बहुत फायदा है। और रात को भिगो के रखिए, सुबह पानी उसका पीजिए। अंजीर भी अच्छा है ना, फिक्स। अंजीर, अब फिग तो अंजीर ही है माय डियर। ओह, फिक्स इज अंजीर।
और Okay. आजकल फ्रेश Sorry, अंजीर sorry आपको to मिल रही है। हाँ But फ्रेश what is रही munaka? है। हाँ, अंजीर खाओ, अंजीर मुन्ना खाओ। का क्या होता है? मुन्ना का क्या होता है? हाँ जी, मुन्ना का मुनक्का, वो क्या है? मुन्ना मुनक्का, that is your dried up grapes. सॉरी ड्राई। सुल्ताना नहीं होता, सुल्ताना, हाँ हाँ हाँ। हाँ, द्राक्ष उसका होती बड़ा है। फॉर्म जो है, ग्रेप्स के कई टाइप्स होते हैं ना, व्हाइट एंड पर्पल ग्रेप्स एंड रेड ग्रेप्स। ओ ग्रेप्स जो Grapes. ग्रेप पर्पल है Yeah, उससे that- मुनक्का बनता है। they मुनक्का are में big one. ज्यादा पावर है, इसलिए हम्म। कहते हैं कि उसको रात को भिगो दो, सुबह उसका पानी पी लो और उनको क्रश किया हुआ कर दो। अगर आपके दांत काम नहीं करते तो नहीं तो चबाओ उसको। मुनक्का बहुत हेल्प करता है, खासकर जो डायबिटिक है ना, उनको अपने पास हमेशा रखना चाहिए। अच्छा। जहां भी आपको लगे कि आपके ब्लड शुगर लो होने जा रही है या यू आर फीलिंग वेरी लो, आपने ठीक खाना नहीं खाया, तो 2-4 चबा लो, देन यू रिवाइव योरसेल्फ। ओके। Yeah, हाँ जी। it's nice. चलिए अब वेल कमिंग टू द क्लोज नाउ। Thank you so much, Dr. Thank you, वेल Dr. डन, Kapoor. वेल डन। अपने आप को थपकी दो, थपकी दो अपने आप को। Thank you very much. That was Hansa Ben, I think. Yeah. Yeah, it is very nice of her to come and talk like openly like this, you know. पर इसमें कोई शर्म की बात नहीं, कोई नहीं, भी ऐसे बोल सकता है और उसमें सब लोगों को फायदा होता है। सभी को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है ही है, क्यों जी? है ना प्रॉब्लम? Yeah. इसलिए बोलना बड़ा अच्छा होता है जब ऐसे इकट्ठे बोलते हैं सबके साथ, तो कई चीजें और हमें भी पता लग जाती हैं, हम भी आपसे लर्न करते हैं। ओके जी, नाउ Thank गो you. टू द Thank you so much. We are going back to pranayam, the last 3 or 4 steps. जल्दी कवर कर दूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। ओके, अनुलोम विलोम से शुरू करिए। Bhamri pranayam 3 times. Give 3 times. Om. 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 Pranam pranayam. Be in the seat of silent meditation. Fix your mind either on your breath or the third eye, chanting the Lord's name inside. मैं अकेला नहीं हूँ, वो सर्वशक्तिमान सदैव मेरे साथ है, उन्हीं की अपार कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। उस प्रभु का कोटि कोटि बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं अकेला नहीं हूँ। Raise your arms up, rub your palms. Put the palm on your eyes. Slowly open your eyes and remove the hand. Laughter is the best thing to get rid of constipation.
You are activating your whole intestine. तो डाला खसाइए और कॉन्स्टिपेशन को भगाइए। रोज एक सेब खाओ, रोज एक सेब खाओ, कॉन्स्टिपेशन भाग जाएगी और भी बड़ी बीमारियां जाएंगी। एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे। सब बीमारियां, कॉन्स्टिपेशन, खासकर दिन को ज्यादा है ना, रात को सेब खा लो, एक सुबह देखो फटाफट भागोगे टॉयलेट को। Yes, save very important every day. And for blood pressure, banana. Keep the BP at bay. So ये जो फ्रूट है हमारे, ये दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ। हम तो फ्रूट समझ खाते हैं, ये दवाइयाँ हैं। भगवान ने उनके अंदर दवाई भर दी है एकदम, सब जगह वो है। चलिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।